अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पॉड आर्ट विद फाइजा। हर दफा की तरह हमारे पास आज एक बहुत प्यारी, बहुत टैलेंटेड, जो कि बाय प्रोफेशन तो एक स्पीच थेरेपिस्ट है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी रेयर थिंग। हम सबको इसकी जरूरत है बेसिकली, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे हुनर और फन अपने साथ साथ लेकर चलती है। अस्सलाम वालेकुम हिबा, Walaikum assalam. कैसी हैं आप? I'm very good. I'm good. Allah ka shukr. And thank you so much for inviting me. आई एम ग्लैड यू जॉइन। It's an honor to be here. हिबा, बहुत सारे मजेदार लेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। That's why you are here. I always encourage कि जो हमारी young talented girls हैं, स्पेशली अब जेन जी जो हैं, उनके पास जो मजे मजे के रंग बिरंगे हुनर हैं, उनको हम एक्सप्लोर करें और मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पर लाने की कोशिश करें। तो माशाल्लाह आप में से एक हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। So thank you so much for considering me, Gen Z. I'm a millennial. But I try to keep up with the trends. By profession, I'm a speech therapist. My master's here with speech therapy. I have a bachelor's in psychology. So basically, I come from a very studious family. तो मेरे पेरेंट्स दोनों जो हैं वो डॉक्टर हैं. So while growing up, we were like, I would say we were forced to be in like science fields. So personally, I had more interest in computers. I had interest in art. I had interest in like lot of like things. लेकिन वो uh, tunnel down to science क्योंकि like हमारा घर का माहौल इस तरह का था कि like you have to choose biology. तुलसी ब्राउन। But I'm very privileged and I'm very glad. वो खाली उस चीज की वजह से like मैं limit नहीं किया गया. They were like explore everything else, like you can choose whatever like you want to do. Or gradually university life में आके like I chose my psychology as a subject था. That was my personal choice. I don't want to do like I don't want to go for BBS and MBBS. I want to go for like psychology. At that time, I feel like इतनी मुझे realization नहीं थी उस चीज की और I was not mature enough कि how I'm going to like take it out. I'm going to work it out as a profession. But later, I realized the master's like speech therapy was pure chance. I applied for like 3 majors and I was like if I got selected to all of those, तो फिर मैं उसके बाद decide करूँगी मुझे आगे क्या करूँ. So I got selected all of them. So फिर I had to pick and choose. Okay, now what do I want to do? और उसमें फिर like my mother always like used to have this feeling एक बच्चा speech therapist हो. I don't know how, but मुझे ये था अच्छा। कि I didn't want to like go into like very serious. मुझे लगता है कि like seriousness थोड़ी सी like speech therapy में कम है as in psychology के cases थे उस relevance में तो I इस वजह से like मैं speech therapy में गई क्योंकि मेरी अपनी personality बहुत sensitive है. So I was like I'm going to do the thing that I'm comfortable. तो खैर but I'm really happy के साथ साथ education के साथ साथ I had a chance to like explore all my other talents as well. I love photography, I love video making, and I love music, and I love coding. I love computer. मुझे computer भी बहुत अच्छा लगता है. तो I'm really happy like I have Oh my God. recently I have developed this मुझे शौक हुआ साइकिलिंग का. आई वाज लाइक अच्छा ठीक है कोई ग्रुप ढूंढती हूँ मैं जिसमें साइकिलिंग का ग्रुप हो एंड वो लाइक इट्स अ वेरी अमेजिंग ग्रुप और वो लाइक हर वीकेंड पे उनकी फैमिली राइड्स होती हैं एंड यू गेट टू अच्छा। साइकिल लाइक यू कैन डू लाइक 100 किलोमीटर साइकिलिंग और लाइक फिर मैंने लाइक वो फिर Oh एक wow. रोड बाइक ली एंड आई guys, I'm very privileged and I'm very blessed, alhamdulillah. Okay, I get to explore all these things and I intend to do more. Hopefully, there is more to it. And why not? माशाल्लाह. So हिबा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपकी मदर ने कहा कि one kid should be a speech therapist. For me, मुझे लगता है कि this was a very rare thing कि rare find type कि it was not a common कहना चाहिए
करियर लाइन या प्रोफेशन, पहले तो नहीं था खैर। अब लेकिन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जैसे मेंटल हेल्थ बड़ी फोकस में है, और इसी तरह ही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत शुक्र है कि ज्यादा अब उनके ऊपर काम किया जा रहा है। स्पीच थेरेपिस्ट इज न्यूअर फील्ड आई गेस, राइट? is actually, और आई वुडंट से कि अभी साइकोलॉजी में भी कुछ बहुत ज्यादा लाइक काम हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बेहतर है हमारी इस चीज को लेके नॉलेज वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि स्पीच थेरेपी इज क्वाइट अ न्यूअर जो है सब्जेक्ट। और आई रिमेम्बर आई वॉज 5 years old आई गेस, एंड मुझे किसी जो घर में होती हैं हेल्पर्स, जिन्होंने उनमें से किसी ने मुझे डरा दिया किसी चीज से, तो मैं स्टैमरिंग करना शुरू हुई उस टाइम पे। आई रिमेम्बर दैट आई वाज 5 years, और उस टाइम पे एक्चुअली माय मदर वाज लुकिंग फॉर सम स्पीच थेरेपिस्ट, लाइक शी वाज लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प मी आउट विद इट। तो देन शी रियलाइज्ड के ओके पाकिस्तान में स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, एंड इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर लोगों से डील कर रहे होते हैं। तो खाली स्टैमरिंग नहीं है, राइट। there's a lot of things। कुछ लोगों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होता, कुछ बच्चे बोलना नहीं प्रॉपर करते, लेकिन कुछ बच्चों को रीडिंग में इशू आता है। there's a lot of issues। अगर आप अगर बहुत ज़्यादा अगर हम उसके डिटेल में चले जाएं तो lot of disorders वगैरह। लेकिन बेसिकली भी कि sometimes you're just anxious and आपका सांस खराब हो जाता है। बेसिक चीज़ें हैं कि जो लाइक थोड़ी टिप्स पे राइट। थेरेपिस्ट हो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। खैर, तो स्पीच मुझे वो लगा कि लाइक स्टैमरिंग वाला जो मेरा पार्ट था, मेरी मदर ने उस टाइम सोचा था कि लाइक ये स्पीच थेरेपिस्ट होना चाहिए उस टाइम पे, एंड शी वाज इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल एट दैट टाइम। तो वहाँ पे लकीली जो वहाँ पे स्पीच थेरेपी का कुछ डिपार्टमेंट कुछ सालों बाद शुरू हुआ, एंड आई वाज लकी इनफ के वहाँ पे थी मैम शर्मीन तारड़, और आई वाज लकी इनफ कि आई वाज हर स्टूडेंट while doing masters। So I was very happy। अच्छा। I was very happy that I got to spend some time with her as a teacher, and it was a very good experience। यस, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। और सिंस आपकी मदर डॉक्टर थी तो उन्होंने इसको रियलाइज भी कर लिया और उसके लिए ढूंढा भी, इलाज भी ढूंढा। आमतौर पे मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ चीज कुछ अर्सा पहले तक कुछ भी ऐसी चीज होती थी तो वो कहते थे कोई दम दरूद करा ले, उसके ऊपर कुछ हो गया है, बच्चा डर गया है, या ये है कि रात को दरख्त के नीचे से गुजर गया था, चुप हो गया है। आई हर्ड दीज स्टोरीज अलॉट। तो अच्छी बात ये है कि शुक्र है कि कोई टेक्निकली या उसको एज अ मेडिकल रीजन या साइकोलॉजिकल ग्लिच समझ के कम अज कम ट्रीट किया जा रहा है। that's a development, I would say. That is So so this part of psychology, यानी कि आप ये इसका path जो है वो साइकोलॉजी के से होके गुजरता है। I would say कि this is a different field, ठीक है, पर लेकिन पाकिस्तान में ये है कि goes through psychology भी हो गया हुआ है, क्योंकि हमारे पास अलग से इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं अभी इस टाइम। I would say कि like जो solely like it's a institute for speech therapy, ऐसा नहीं है। तो ये है कि जो मैंने डिग्री किया है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट किया। तो लाइक वो जो जो हमारा डिग्री है वो जो केटर कर रहा है वो सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी ही केटर कर रहा है। तो अभी ये है कि अभी आई वुडंट से कि लाइक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बन गए। मैं लाइक यू वर राइट के इट्स अ न्यू फील्ड, और खासतौर पर पाकिस्तान में भी ज्यादा डेवलप है आई गेस कराची में। तो कराची में मेरे ख्याल से बेहतर है, लेकिन लाहौर में मुझे लगता है जो मैं अभी टीचर का प्रोफेसर का जिक्र कर रही थी, मैम शर्मीन तारड़, उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में। ओके। तो दैट वाज हर इनिशिएटिव एज वेल कि लाइक this is something that should be like इसको आगे लेके चलना चाहिए, and there should be more speech therapists, and बिल्कुल she did it in a very genuine goodwill, और जिसका वाकई में बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी एकदम से स्पीच थेरेपिस्ट लाइक लाहौर में बेहतर हैं। ये बात स्पीच थेरेपिस्ट, डॉक्टर, प्रोग्रामर, कोडिंग को पसंद करने वाली, यानी कि ये जो है ना हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली
वाले इंटरेस्ट हैं। इसके साथ साथ मुझे किसी उड़ती चिड़िया ने बताया है कि कोई सिंगर भी इनमें है। इन तमाम कामों में एक सिंगिंग भी है जो आपको बहुत पसंद है। Singing, Is it that? I wouldn't say I'm a singer. I would say that I like singing. और सीखा नहीं है कुछ ऐसे कहीं से. I feel like I really feel like कि आगे लाइफ में अगर मेरा कुछ और like प्लान है तो आई like pursuing singing, like सीखूं, like तो क्या है, like कैसे मैं कर मुझे ये नहीं पता. Pure talent, अल्लाह का शुक्र है. So my mother used to sing. She used to participate in her events at medical college. और वहां से फिर हमें स्टार्ट हुआ, लाइक फिर आगे उनके दोस्तों की शादी हुई तो उन्होंने ढोलकी भी बजाई. आई वुड लाइक वी आर गुड इन इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल. और वहां से बेसिकली क्योंकि family is very religious, conservative. So my mother was the first one to explore this music sense में, like as a girl उन्होंने वो चीज explore की. And मुझे मुझे कोई ऐसा याद नहीं है कि like मैंने कब सीखा हो, या मैंने भी बस ढोलकी पकड़ी किसी दिन और मामा को बजाते हुए देखा तो वो like you know the rhythm is in you then, कि वो like it travels. बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि सीखने की क्या जरूरत है, रोना और गाना तो सबको आता है। बिग थिंग। फर्स्ट स्टेप जो है वो आर्ट अप्रिसिएशन ही होता है किसी भी नेक्स्ट स्टेप से पहले। अप्रिसिएशन इज द थिंग जो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। साथ ये अभी आपने साइकिलिंग की बात की तो यहाँ जो है ना हमारा सोल कनेक्शन हो रहा है क्योंकि आई लव साइकिलिंग बट आई नेवर डिड इट लाइक एज अ प्रॉपर हॉबी। आई स्टिल डू बट उतना यानी ये कोई माइल्स रन और ये वो इस तरह का नहीं है। बट मुझे ये पता है कि सो मच फन। आई थिंक कि मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगती है ना वो साइकिलिंग लगती है। लगता है कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। Is it like that? Especially when you're doing it on roads. और खास तौर पे एज अ पाकिस्तानी, एज अ औरत, और आप सड़क पे साइकिल चला रहे हो, लाइक दैट्स अ वेरी बहुत ही मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है. ऐसा तो नहीं हो सकता या हम नहीं कर सकते. और शुरू में जब मैंने स्टार्ट की भी तो ऑब्वियसली माय फैमिली वाज कंसर्न कि नहीं जाना, कोई एक बॉडीगार्ड साथ भेजेंगे, कोई ना कोई गार्ड करे तो मैं वहां पे उठता. बट इट was a very good circle. The cycling wala tha, वो was like it was very like very comfortable group of people. I really enjoyed it, and I feel like I was at a very low stage in my life. और वो cycling जो था ना, it takes away all your stresses and so therapeutic. बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी मेरा ख्याल है मैंने रिसेंट देखा है कि नाउ इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन क्योंकि मैंने देखा है यहाँ स्कूटीज और वो बाइक्स की बहुत कॉमनली लड़कियां आ जा रही हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई विश जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हमें भी अवेल करने के लिए ये मौका मिलता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, क्योंकि जो खास तौर पे इकोनॉमी के हालात हैं आजकल पाकिस्तान के, तो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ कार और एनीथिंग. तो आई फील लाइक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इवन आई फील लाइक कि हर कोई शायद मोटरसाइकिल और नहीं ले सकता, तो साइकिलिंग भी लाइक उस चीज को भी लाइक जो तो खास तौर पे भी आगे इकोनॉमी के हालात हैं, मुझे लाइक इवेंचुअली लॉट आउट टू मूव. बट आई दैट सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहां पे आती है. आई फील लाइक कि वो औरतों की सड़क की सेफ्टी है. ठीक है, औरतों मर्दों दोनों की, क्योंकि लाइक फ्लो भी कर रहा है, लाइक आप थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड टू व्हील राइड, बहुत सारी चीजें हैं. तो आई फील लाइक कि थोड़ा सा ना एटलीस्ट मेन रोड्स पे थोड़ा सा आई फील लाइक थोड़ा सा लेन का होना चाहिए यहाँ पे भी, कि लाइक थर्ड लेन शुड बी स्पेसिफाइड फॉर टू व्हील्स एटलीस्ट. और खुद टू व्हील्स वाले एटलीस्ट फर्स्ट लेन में ना आए अपनी हिफाजत के हवाले से. तो वो आई फील लाइक इट्स वेरी टाइट. अब वो चीज थोड़ा सा ना चेंज होनी चाहिए. दीज आर द पॉइंट्स जो आप रेज करें और हम इनको जितना मुमकिन है पहुंचाएं, बाकी दुनिया तक स्प्रेड करें क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग कि जो हर कोई बता सकता है अनटिल कि आप कर रहे हैं, आपकी अपनी हॉबी हो. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट.
आई वुड लाइक टू से कि जो लोग अरबाब इख्तियार हैं और देख रहे हैं, उनको अभी गौर करना चाहिए कि आईएमएफ से कर्जे लेकर अगर आपसे गाड़ियां नहीं चल पा रही तो साइड वॉक्स बना दें साइकिलिंग के लिए, और सिर्फ एक कुछ लाइंस कर दें ताकि कुछ तो जिंदगी आसान। साइकिलिंग से होते होते हम जा रहे हैं यूट्यूब की व्लॉगिंग की तरफ। ये मतलब अनदर टोटली डिफरेंट डायमेंशन। ये कैसा कर? ये मुझे लगता है मुझे भी नहीं पता था कि लाइक ये भी मेरी साइट करती है एग्जिस्ट। Randomly, I remember I was 10 years old और तब मैं ना कैमरा होता था लाइक वो, तो फिर मैंने कैमरे से पूरे घर की वीडियोस बना रही हूँ और खुद से मैं बता रही हूँ देखो ये मेरा घर है, लाइक ये सोफा है, सोफे के ऊपर कुछ आई यूज टू डू दैट एट अ वेरी यंग एज। तो उस टाइम ऑब्वियसली अच्छा। लाइक पता ही था लाइक ब्लॉगिंग होती है कुछ, बट आई रिमेम्बर हम जो सारे कजन्स हैं वी यूज टू हम खुद से लाइक प्ले बनाते थे, तो चलो आज ये जो कैरेक्टर्स हैं अब हम सारे ना एक्ट आउट करेंगे थे। और उसके बाद क्या होता था कि लाइक मोस्टली होता था कि आई वाज अ कैमरा, तो कैमरामैन ने वीडियो बनाई है जे एंड पे क्या होता था एडिटिंग, लाइक आई लव डूइंग एडिटिंग, तो लाइक मैं उनको लाइक क्लिप्स को जोड़ती थी। ओह। माने की हम बात करें तो वो जॉयस्टिक वाले फोन होते थे, तो सोनी एरिक्सन के, और वो इतनी मुश्किलों से वो आप ज्वाइन करते थे और हमेशा हमारे साथ ये होता था कि जब वो पूरी वीडियो बन जाती थी और हमारा मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता था। सैडली वी डोंट हैव एनी वीडियोस लेफ्ट, बट आई यूज्ड टू डू इट फ्रॉम दैट टाइम। उसके बाद फिर डीएसएलआर आ गए, उसके बाद बहुत सारी और चीजें आई, उसके बाद फिर मैंने रियलाइज किया कि अच्छा ओके आई कैन डू दिस। पहली जो मेरी वीडियो थी दैट वाज नॉट अ व्लॉग, वो मैंने वुमेन राइट्स पे वीडियो बनाई थी फॉर टू रिप्रेजेंट माय यूनिवर्सिटी, बट दैट वाज माय वीडियो सोलली, इट वाज माय वीडियो। और उसमें वाज अ टीम वर्क, उसमें मेरे साथ दो और लड़कियां थी, लाइक एक ने लाइक पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर की, एक दूसरी मेरी बहन थी उसने भी मेरे साथ लाइक थोड़ा सा वॉइस ओवर आधा उसने किया, आधा मैंने वॉइस ओवर किया, तो टोटली लाइक हमारी पूरी लाइक क्रिएशन। एंड दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो एवर एंड इट हैज 25,000 views on YouTube. That's the ओह only नाइस। that got views. So it was very informative in that way. मैंने वैसे रैंडमली यूट्यूब पे लगा दी, आई मेड दैट फॉर यूनिवर्सिटी, मैंने रिप्रेजेंट किया था ब्लू राइट से। वहाँ भी लाइक लाइक काफी अप्रिसिएशन मिली थी, तो फिर आई रियलाइज कि ओके आई कैन डू दिस ऑन सीरियस नोट। वो पहली दफा मैंने फाइनल कट प्रो पे पूरी एडिट की और सारा दैट टाइम आई रियलाइज कि ओके आई कैन वीडियो एडिट एज वेल, मुझे ये सॉफ्टवेयर भी आता है, आई डिडंट नो दैट। या व्हाई नॉट। I could use that software और मुझे लगा था मुझे सीखना पड़ेगा। I just opened it one day and I just started using it. I don't know how, but alhamdulillah, like dumb मुझे like I knew how to compile all that. तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, कोरोना वाला टाइम आ गया, तो लाइक फिर हमने ऐसे घर पे बैठे कुछ करना शुरू कर दिया, तो चीजें जोड़ ली। वेरी गुड। तो अभी तो इस वक्त जो बिलियनर्स निकल रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, वो सब के सब वन वन गो में हिट होने वाली जनरेशन चल रही है। सो आई एम होपिंग कि यू विल शेयर जब आपके एक हिट लग जाएगा तो मुझे याद रखिएगा, क्योंकि आजकल तो वायरल वायरल कंटेंट का जमाना है ना। A lot of people are saying to me that these days मैं कहती हूँ नहीं इतना नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि like मुझे लगता है कि I don't put lot of effort into it like as a like I should be managing my pages like that. I feel like I just go with the flow. आज मेरा दिल किया गिटार उठाया गाना गा लिया, आज दिल किया ब्लॉग कर लिया, आज दिल किया रील बना ली, like I just go with the flow, क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि लाइक प्रोफेशन बाय प्रोफेशन वो मुझे लगता है कि प्रोफेशन अलग है, तो दिस इज समवेयर आई एम गोइंग टू बी ऑथेंटिक, just going to do whatever he wants, and this is going to be like the authentic place, like whatever I'm feeling here I'm going to share. तो वो like इसमें I don't शेयर मैं ऐसे नहीं करती कि like आज की 3 पोस्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सब जो कि करना चाहिए if I want to grow my network और उस तरह। No, but that's real. That's something that represents you. It doesn't have to be कि बहुत ही स्पेसिफिक बनी हुई रेसिपी हो तो उसके ऊपर चलना है। ओरिजिनल कंटेंट जो है, जो ओरिजिनल चीज है, वो बहुत ज्यादा उसकी पावर होती है। और few people should remain original, I believe.
I do believe that too. Or I feel like agar if anybody goes to my social media accounts, so like this is some place that they can relate, that it's very normal and that it's very authentic and that's so relatable. तो तो अब इस वक्त स्क्रीन पे आपके राइट या लेफ्ट पे हिबा के जो है सोशल मीडिया लिंक्स चल रहे हैं, आप इनको देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज I'm sure you have your social media links, right? वाह, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है ना कि हमें जो है ना एक बहुत अच्छी सी फुल रात चाहिए कि हम तसल्ली से मजे से ये गप्पे लगाएं। उनमें से ये ट्रैवलिंग का क्या चक्कर है? ट्रैवलिंग का भी आपको शौक है? Traveling, I like traveling. Traveling मुझे ज़्यादा खुशी थी पाकिस्तान एक्सप्लोर करने में, क्योंकि हमारा ज़्यादा आई फील लाइक कि एज अ वुमन अगेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखनी होती हैं, लाइक अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। तो जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी में थे तो आई हैड अ क्लास दैट वाज इन बलूचिस्तान। हमारा दिल करता था यानी बलूचिस्तान जाएंगे, एंड यू टेल अस के अभी जो तुम लोग देख रहे हो और जो तुम कहते हो कि जी हम केपीके गए वहां गए, यू शुड नो, यू शुड सी बलूचिस्तान, वो अनटच्ड जगह है, वहाँ कोई नहीं गया और साफ सुथरा बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा ये है कि यूं बड़ा मजा तो आता है हमें कि हम बाबू सर टॉप तक गए और पाक चाइना बॉर्डर, लेकिन दैट्स सो सैड कि अब मैं अभी लास्ट ईयर में गई हूँ 7 साल बाद, और वो जगह आई एम जस्ट रियली सैड फॉर व्हाट पीपल हैव डन टू दैट प्लेस, लाइक वेरी डर्टी नाउ, और आपको फील होता है जाके। खास तौर पर मुझे लगता है कि मेरे पास वो रिकॉर्डेड था, तो मैंने कंपैरिजन किया तो आई वाज लाइक कितना बहुत ज्यादा आपको फील होता है कि पॉपुलेटेड हो गया, बहुत रशी हो गया और बहुत ज्यादा लाइक ऑब्वियसली मेंटेनेंस नहीं है तो चीजों का फिर उतना स्पेस फील होता है। तो उसी के खैर में कहा बलूचिस्तान जाना है ये वो, तो दैट इज ऑन माई लिस्ट। अभी भी उसने मुझे कहा था कि हमारे साथ जाओगे तो हम लाइक नेटिव हैं तो हमने न्यूज तरह से प्रॉब्लम, लेट्स सी। Right. That's on my list as well. I want to travel to Gwadar as well. Still, I want to travel to Karachi area more. मैं बहुत छोटी थी जब मैं कराची गई। I don't remember ज़्यादा कुछ तो, लेकिन फिलहाल I have explored मरीन अथियागरी, तो वो सारी गए होते हैं। नारायण का गान साजिद करदू हुंजा कश्मीर। I really enjoyed, and मेरे ख्याल से मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था पाक स्टडीज बचपन में स्कूल में, और वो सिर्फ इसलिए था कि लाइक आई लव ज्योग्राफी, लाइक पाकिस्तान का ये है अच्छा ठीक है अच्छा। का ये क्या, और जब फिजिकली उसको जाके देखना लाइक वो ब्यूटीफुल। तो हिबा ये हमें गाना अब कब सुनाएंगे आप? ओके लेट मी थिंक मैंने कौन सा गाना सिलेक्ट करना है। हेड ऑन। शायद से कोई चाल चल गया, रिश्तों वफा का रंगों में ढल गया, मुझको की चांदनी से थी बेहतर वो धूप ही, उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। लिटरली मैं ताली बजाऊं या ना बजाऊं ताकि मैं होश में ना आऊं, लाइक मेलोडी जो सही लफ्जों में है वो माशाल्लाह आपकी आवाज में है। यू शुड डू दैट अलॉट। आपने किसी प्लेटफॉर्म पर गाया? Not exactly. मैं बस like university events तक, बस इतना ही। I haven't sung for anybody. तो मेरा ख्याल है कि इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है। एंड सिलेक्शन इज कि जो हर बंदे को ना खामखा किसी की याद दिला।
फॉर माई मदर कलेक्शन वो सुनती होती थी अपने जो है उनका मेडिकल कॉलेज वाले जमाने में. तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू हर प्लेलिस्ट. आई वाज लाइक मामा क्या क्या और कौन सी जगजीत चित्रा की आपने बात सुन लिया आपने बताना. तो शी लव जगजीत चित्रा और रिसेंटली आई डेवलप्ड दैट लव एज वेल. और फिर आजकल के जमाने में खास तौर पे यू लुक फॉर सम लिरिक्स जिनका एक्चुअली मीनिंग हो लाइक मेलोडी दैट्स एक्चुअली मेलोडिक. मीनिंग हो, तो वो फिर वहां से नहीं मीनिंग भी हो, फिर आवाज और उसमें सुर भी हो ना, आवाज लय सुर. तो अगर ये चीजें कनेक्ट कर जाएं तो फिर आप बाथरूम सिंगर से आगे का दर्जा पा जाते हैं. तो मेरी तरफ से वो अवार्ड है, आप ले लो. थैंक यू. नो रियली दैट्स रियली गुड. हम ना मैं चाहूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम के एंड पे हमें इसी मधुरता के साथ जो है वो एक और पूरा सुनाएंगी नगमा गीत जो भी आपका दिल चाहे. मीनवाइल जो है, अब आपने इतनी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चाह रहा कि मैं वहीं पे रहूं. लेकिन मेरा हमेशा जो बच्चियां हैं या हमारी खवातीन हैं उससे सीरियस सवालात में थोड़े से मिलना चाहती हूँ. व्हाट्स योर टेक ऑन women empowerment and औरत मार्च? I feel like very important and I've been a part of it as well. ठीक है. I do get that जो लोगों की I I'm a kind of person that allows every opinion. ठीक है. I respect every opinion. So I respect that कि जिन लोगों को औरत मार्च से लाभ है वो भी क्यों है. I do get that. ठीक है. उसके बाद रिलीजियस रीजंस भी निकालते हैं, उसके कल्चरल रीजंस भी हैं. इट्स न्यू ऑब्वियसली. ठीक है. बट आई फील लाइक कि उसका जो कोर है वो फिर हम यूज कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे ना अ, थोड़ा रिवाज है कि लाइक हम सिर्फ लाइक वी क्रिटिसाइज इन लाइक इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म. तो लाइक सिर्फ क्रिटिसाइज करने में हम जो कोर होता है ना उस चीज का वो हम मिस कर जाते हैं. ठीक है. एब्सोल्युटली. वो जो क्या लोगों के कंसर्न्स हैं ठीक है आपके वो ओपिनियंस हैं नहीं होना चाहिए बहुत सारी चीजों को लेके. I don't agree with that, but I do respect that. I can respect that. But the problem is that कि उसमें जो मेन चीज बात हो रही है औरतों की, वो औरतों के हुकूक कहीं ना कहीं फिर से चले जाते हैं. औरत मार्च होनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है. हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता. हमारा मुल्क तो इस्लामी है. आई एम सॉरी दैट इज ट्रू. ये ना इस्लाम पे थ्रेट है ना हमारे मुल्क पे थ्रेट है. ये हमारे लिए थ्रेट है कि लाइक हम औरतों के साथ क्या कर रहे हैं. ठीक है. पाकिस्तान क्या है? पीस ऑफ लैंड. रिलीजन क्या है? इस्लाम क्या है? जस्ट रिलीजन. ठीक है. ये लैंड और रिलीजन अलग चीजें हैं और जो यहाँ पे इंसान बस रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये उस चीज पे बात होती है. तो वो डायरेक्टली आप या रिलीजन पे ले जाते हो या आप लैंड पे लेके जा रहे हो या हमें उसको लेके जा रहे हो. जो कोर है जो यहाँ पे औरतों के साथ हो रहा है उस चीज को हम फिर जीरो पे चले जाते हैं. जी. ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है एज ए यंग गर्ल. आपको आप लोगों को बेहतर पता है. बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक्चुअली जो इशू है ना उसको बाकी चीजों के साथ कंफ्यूज करके दोबारा से दबा दिया जाता है. क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी इस्लाम के साथ जरा बहुत वाइल्ड किस्म की या तो कर दी गई या गलती से हो गई. लेकिन जब इस्लाम की बात हम करते हैं कि जी इस्लाम ने औरत को ये हकूक दिए हैं, तो रिपीटेडली मैं सोचती हूँ कि इस्लाम ने तो दिए हैं लेकिन क्या आपके मुआशरे ने दिए हैं? आपके मुआशरे ने नहीं दिए. उससे मांगे जा रहे हैं. इस्लाम कहाँ से आ गया? तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी जनरेशन जो है वो बड़ी बारे में क्लियर है एंड दैट इज वेरी एम्पावरिंग. और इसके साथ साथ जो आप जैसे यंग बच्चे हैं बच्चियां हैं वो इस चीज को आगे भी बढ़ा रहे हैं कि वो अपने नॉर्म्स में रहते हुए अपनी एथिकल बाउंड्रीज में रहते हुए अपने राइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड. रियली हैप्पी टू सी दैट. हिबा, अब हमारा अगला कदम बढ़ता जा रहा है कि आपका इतना अच्छा हमने टाइम लिया. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. और अपनी बहुत क्यूट बहुत अच्छी अच्छी सी अ, जो आपकी हॉबीज हैं, आपके शौक हैं, आपके ख्वाब हैं वो शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
मेरी रिक्वेस्ट पे आप मुझे एक बहुत अच्छा सा एक और गाना सुनाएं। जीवन होना है तेरे पंछी सहने जैसे पूछे तेरी बातें आंसू से जाती रातें या लिए तू है मेरे लिए अब हो रही या जाएगी मेरे में खूब सुन मेरी सांसों से सुन मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ वाह, मैं एक्चुअली इसमें बिल्कुल खो चुकी हूँ और नाजिया हसन एरा में जा चुकी हूँ completely. Thank you so much for so many गुड मेमोरीज जो आपने जिनको थोड़ा सा टिकल डाउन कर दिया है, थोड़ा सा याद करवा दिया है। जीती रहिए, खुश रहिए, इसी तरह मजे मजे की अच्छी अच्छी सी फ्रेश और पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी दैट यू हैव माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कायम रखे। हम आपके साथ हम आपके साथ गाहे बगाहे बात करते रहेंगे। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें और अपने ख्याल रखने वालों का ख्याल रखें। देखते रहिए पॉड आर्ट विद फायजा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।